Hello everyone. Let's start today's questions. So, yeah, we have done till question number 4. Let's solve question number 5. Find the equivalent fraction of 36 by 48 with numerator 9, denominator 4. So, there are two options. In first option, it is saying numerator 9, and in the second question, it is saying denominator 4. So, let's solve this. 36 by 48 is given, and they have said we are doing question number 5, and they have said that they want numerator 9. So what would be the fraction? Solve this question. You have 40 seconds. We have done this kind of question earlier also. Please solve it. We have to divide 36 by something, and we have to divide it in such a way so that we can get 9 here in the numerator place. We have to divide 36 by something. Think about it, what we will divide. How can we divide 36 by something so that we can get 9? Yeah, if we will divide 36 by 4, so we will get 9 here. So obviously we will divide 48 also with 4. So let's divide 48 by 4. 4 ones are 4. 4 twos are 8. So 12 is the answer here. So it will come here. So the fraction of this would be 9 by 12. Okay, let's solve question number B. 36 by 48 and the expected denominator is 4, so you have to calculate the numerator. (36 by 48), the expected denominator is 4. We have to calculate the numerator here. So we are dividing the denominator by some number. So basically we are dividing the 48 with the help of one number, and we are dividing it in such way so that we can get 4 in the denominator place. Solve this question. Okay, so let's think in which table 48 comes at the 4th place. So 4 fours are 16, 5 fours are 25. We are a little bit far away from 48, so let's move to 10. 10 fours are 40. 11 fours are 44. 12 fours are 48. So yes, we will divide it by 12. We will get 4 as an answer. So we will divide 36 also with 12.
12 ones are 12, 12 twos are 24, 12 threes are 36. So 12 threes are 36 is the answer. So the new fraction would be 3 by 4. 3 by 4 is the answer here. Okay, let's solve next question. Question number 6. Check whether the given fraction are equivalent. अब हमें ये चेक करना है कि जो भी फ्रैक्शंस दिए गए हैं वो इक्विवेलेंट हैं या नहीं है. ठीक है, 5/9, 30/54. अब हम ये कैसे चेक करेंगे कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट हैं या नहीं है. So we have done this, how to do the equivalent fraction thing, right? Equivalent fraction हम कैसे निकालते हैं? Equivalent fraction हम निकालते हैं by multiplying और dividing the fraction, right? हम fraction को या तो multiply करते हैं fraction के numerator and denominator दोनों में, या फिर हम क्या करते हैं numerator and denominator दोनों को multiply करते हैं सब किसी number से, either divide or multiply, right? This is how we get the fraction. अब यहाँ पर क्या है, आपको यहाँ ऑलरेडी एक बिग फ्रैक्शन दिख रहा है. इसकी वैल्यू अगर हम देखें तो 5 और 9 दोनों छोटे छोटे नंबर हैं या दोनों बड़े बड़े नंबर हैं. तो यू कैन सी कि हमने इस फ्रैक्शन में किसी चीज़ को मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों में, जिसकी वजह से हमें ये फ्रैक्शन मिल रहा है, राइट? तो अगर हम ये देखें कि 5/9 है, 5/9 में हम क्या मल्टीप्लाई करें कि 5 की प्लेस पे 30 आ जाए एंड 9 के प्लेस पे 54 आ जाए. तो 5 में हम क्या मल्टीप्लाई करते हैं कि 30 आता है. सो 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20, 5 5s are 25, 5 6 are 30. So basically we are multiplying 6 with this 5. 5 6 are 30. We have got 30 here. Now whatever we have multiplied in the numerator, same number we will multiply in the denominator also. 9 into 6, 9 6 are 54. So yes, we are getting the denominator also, right? Numerator and denominator दोनों हमें मिल चुके हैं 30/54. So yes, we can say that yes, this is the equivalent. These both fraction are equivalent fractions. तो आप यहाँ पर इस क्वेश्चन में डायरेक्टली येस और नो लिख सकते हो, ठीक है. बट इट डिपेंड्स कि आपका क्वेश्चन कैसे आता है. यदि आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि देखिए 1 नंबर या 2 नंबर के में आया है कि वेदर दीज फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट और नॉट, राइट? तो अगर आपको 1 2 नंबर में आया है तो आप डायरेक्टली 1 मार्क में आया है या फिर हॉट्स में आया है तो आप इसका डायरेक्ट आंसर दे सकते हो यस या नो में, राइट या रॉन्ग में. बट यदि आपको ये क्वेश्चन 3 नंबर्स में आया है तो बेसिकली आपको इस क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करना होगा, इसका पूरा कैलकुलेशन करना होगा. कैलकुलेशन आप कैसे कर सकते हैं, जैसे हमने किया है वेरी सिंपल फॉर्म में. यू कैन कैलकुलेट इट एंड यू कैन शो इट इन द नोटबुक, बिकॉज सी क्वेश्चन करने के मार्क्स मिलेंगे आपको, आंसर के तो मार्क्स होते ही हैं, बट मैथ्स इज समथिंग इन विच स्टेप्स के मार्क्स होते हैं, राइट? तो यू कैन डू it in this way. Obviously you have to write down the question number by 54. So here we are multiplying 9 by, and this is how you can make it, right? And in the second line you can write into 6, and you are getting the same fraction, so which is equals to 30/54, which is written here, right? So yes, both the fractions are equivalent fractions, right? चलिए आगे करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन 2 इज सेइंग 3/10, 12/50.
राइट। अब 3/10 में हम वापस देखेंगे, 3/10 छोटे नंबर है एज कम्पेयर टू 12/50। अब हम 3/10 में क्या मल्टीप्लाई करेंगे सो दैट वी कैन गेट 12/50। चलिए जल्दी जल्दी सोचिए क्या मल्टीप्लाई करेंगे। 3 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 12 हो जाए, 10 में क्या मल्टीप्लाई करो कि 50 हो जाए। Solve this question, you have 40 seconds. Are you solving it? It is a very simple question. Right, 3 4s are 12, तो हम यहाँ 4 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं न्यूमरेटर में। बट अगर हम सेम नंबर से यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वी विल नॉट गेट 50 हियर, राइट। वी विल नॉट बी एबल टू गेट 50। एंड यदि हम दोनों जगह 5 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डिनोमिनेटर में तो हमें 50 मिल रहा है बट हमें न्यूमरेटर में 12 नहीं मिल रहा है। तो बेसिकली we can say that this is not an equivalent fraction, right? चलिए लास्ट क्वेश्चन इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 7/13, 5/11। अब देखा जाए नंबर के हिसाब से तो 5/11 दोनों नंबर छोटे छोटे हैं, राइट। 5 7 से छोटा है, 13 11 से छोटा है। दिस क्वेश्चन यू कैन सॉल्व like simply you can solve it like this only you can solve it. Just look into this question and tell me what we will be able to do, what we will do in this question. सी 5 में हम कुछ भी मल्टीप्लाई करके 7 नहीं बना सकते, राइट। 7 एंड 5 में बहुत कम डिफरेंस है। We cannot multiply or divide anything from 5 or 7 to get the another number. Same way 11 and 13 का है। 11 and 13 भी दोनों इतने क्लोज हैं कि हम कुछ भी इसमें मल्टीप्लाई या डिवाइड करके नेक्स्ट नंबर नहीं क्रिएट कर सकते, राइट। तो बेसिकली आप इसमें सिंपली लिख सकते हो कि दिस इज़ नॉट एन इक्विवेलेंट नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग रिड्यूस द फॉलोइंग फ्रैक्शन टू सिंपलेस्ट फॉर्म। हमें इन फ्रैक्शन को रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। 48/60 ये हमने बहुत सारी बार किया हुआ है। आई एम श्योर आपको इजीली बनेगा। मैं आपको इसके लिए भी 40 सेकेंड्स दे रही हूँ, जल्दी से सॉल्व करके देखिए।
in solving it, we have to reduce the fraction. Basically we have to divide something from the given fraction so that we can reduce this fraction to its simplest form. चलिए सॉल्व करके मैं आपको बताती हूँ, आप अपना आंसर चेक करिए। तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था कि हम इसको किसी भी एक स्मॉल नंबर से डिवाइड करके स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली किसी बिग नंबर से करते हैं। तो हम दोनों टाइप से करके देखेंगे। लेट्स स्टार्ट इट टू डिवाइड दिस विद 2। अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2s आर 4 एंड 2 4s आर 8, 2 3s आर 6 एंड 0। अगेन वी विल डिवाइड इट विद 2, 2 1s आर 2, 2 2s आर 4, 2 1s are 2, 2 5s are 30, और 2 5s are 10। राइट नाउ 12 एंड 15 दोनों किस टेबल में आते हैं? 12 एंड 15 दोनों आते हैं इन द टेबल ऑफ 3। 3 4s are 12 एंड 3 5s are 15। अगर अब हम ये देखें 4 एंड 5 दोनों साथ में किसी भी टेबल में नहीं आते हैं, तो दिस वुड बी द स्मॉलेस्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रैक्शन। राइट, इस फ्रैक्शन का ये जो होगा वो स्मॉलेस्ट फॉर्म होगा। मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं आपको सेम क्वेश्चन किसी दूसरे बिग नंबर से डायरेक्ट डिवाइड करके दिखाऊंगी। हमारा इसका स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन आया 4/5, राइट। अगर हम इसको सिंपली, हमने भी इसको 3 बार डिवाइड किया था, अगर हम इसको सिंपली 12 से डिवाइड करते हैं, 12 4s are 48 and 12 5s are 60. So in a very simple and single steps we will be able to get this answer. Okay, so the simplest form of this question would be 4/5. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग 150/60। चलिए 40 सेकेंड्स हैं आपके पास, जल्दी से क्वेश्चन सॉल्व करिए। डन। चलिए सिंपली हम 0 को 0 से कट कर देते हैं। वी विल डिवाइड इट विद 3। 3 5s are 15 एंड 3 2s are 6। तो डायरेक्टली आपका आंसर हो जाएगा 5/2, राइट। चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 84/98। Solve this question. चलिए साथ में सॉल्व करते हैं।
84 by 98. Let's start with 4 से कोई डिवाइड होगा नहीं, 2 से ही स्टार्ट करते हैं. 2 4s are 8 and 2 2s are 4. 2 4s are 8, 2 9s are 18. Let's divide this again by 7. Yeah, 49 comes in the table of 7 only. So 4 6 7 6 are this and 7 7s are this. So 6 by 7 would be the answer for this one, right?